ठीक हो ना? अच्छा, yesterday I discussed regarding this chapter, transportation in plants. This chapter having so many components, that means topic we have to discuss. Already this chapter has deleted from your syllabus. Reduced syllabus, as per the reduced syllabus, this chapter has deleted. But as per the CBSE direction or instruction, the teacher must have to teach deleted chapters. Okay, so that means so many topics here you have to discuss: active transport, passive transport, that is transpiration, significance of transpiration, mechanism of opening and closing of stomata, etc. Yesterday I discussed mechanism of closing and opening of stomata. Yesterday I told you what do you mean by stomata. Yesterday discussed stomata. You have studied regarding in class 10. Stomata. What is stomata? Hello. Hello. Stomata. Stomata, the opening present on the leaves through which gaseous exchange takes place, known as stomata. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. तो आवाज क्यों नहीं दे रहे? स्टोमाटा का डेफिनेशन आपको बोलना चाहिए. स्टोमाटा, stomata through which the gaseous exchange takes place, as you know, during the photosynthesis and respiration, oxygen and carbon dioxide trapped by the plant. So this trapping of the oxygen and carbon dioxide is done through this stomata. This is the opening and where gaseous exchange takes place. Okay. अच्छा बताओ तो, can you say other than stomata a type of opening present in the plant body through which gaseous exchange takes place? Can you say the name? Hello. Other than stomata. Hello. Lenticell नाम सुने हैं? Lenticell. Hello. Lenticell. Other than stomata, lenticell. Lenticell means this is the opening present in the older plant and the part and roots of the plant through which gaseous exchange takes place. This is known as lenticell. This is known as lenticell. 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 Okay. Acha, next one. Symplastic and apoplastic pathway. Symplastic pathway and apoplastic pathway. Symplastic pathway means, what do you mean by symplastic pathway? The living connection between the two cells are known as symplastic pathway. Living connection between the cells. As you know, between the two cells, minute connection are there. This is known as the plasmodesmata. This is known as plasmodesmata. 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 And through which the living connection takes place. Living connection whenever takes place, this is known as the symplastic pathway. Symplastic pathway means living connection. Living connection. सर कल से क्लासेस नहीं होगा फिर? कल से क्लासेस नहीं होगा सर? वो नोटिस जाएगा आपको, ठीक है? वो नोटिस जाएगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली सस्पेंड रहेगा, ठीक है? और स्कूल ओपन होगा 5 तारीख से, उसमें आप लोग आ सकते हैं, ठीक है? एज पर गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, यू कैन कम टू द स्कूल, ठीक है? वो गाइडलाइन जाएगा आपका पास नोटिस में, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स का सर बस चलेगी? वो पूरा स्कूल बस रन होगी? नोटिस आपको मिलेगा रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द स्कूल. ओके, क्या होगा नहीं होगा? सर बस चलेगा क्या सर? हाँ,
बस क्या चलेगा। होगा, वो फुल नोटिस आपको जाएगा, क्लास चलेगी या कितना बजे से होगा, कितना रोल नंबर है, 50% को अलाउ करेगा तो 50% मीन्स एज पर, हाँ, तो ये एक चीज हम समझना अच्छा ठीक है। नहीं, स्टूडेंट्स तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है ना, ये लोग के लिए तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ये है। हम लोग तो क्लास ले रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल, ये उनके लिए एक ट्रेजेडी हो गया एकदम। ठीक है, तो जो भी है, तो मतलब एक गाइडलाइन जाएगा आपको 5 तारीख से कैसे स्कूल आना है, किस हिसाब से होगा, पेरेंट्स का परमिशन लेना है, ये सब चीज गाइडलाइन आपका पास जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए डोंट वरी, वो नोटिस जाएगा आपका, स्कूल खोलने से पहले आपको नोटिस जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ओ यार इसका क्लास, हाँ बताओ बताओ बताओ, और कोई? अच्छा, प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो? मैंने कल जो डिस्कस किया है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डायग्राम और डिटेल्स लिखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2। उसके बाद स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन में एटलीस्ट 10, उसमें फिशेस होगा, फ्रॉग होगा, लीच होगा, अर्थवर्म होगा, कॉकरोच होगा, हाउस लिजर्ड, इसमें से एटलीस्ट 10 आपको डायग्राम प्लस उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है 3 बायोकेमिकल टेस्ट, 3 बायोकेमिकल टेस्ट जो लिखा गया, इसमें टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर ये और क्या लिखा है, 3 बायोकेमिकल टेस्ट लिखा। उसके बाद अगर स्कूल खुलेगा तो उसके बाद डिस्कस हो जाएगा और क्या लिखना है, आगे क्या क्या लिखना है। ठीक है, तब तो ऑफलाइन जब क्लास शुरू हो जाएगा तब तो आप लोग से एकदम फेस टू फेस बात होगी, फेस टू फेस लिखाया जाएगा, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हेलो। अच्छा नेक्स्ट, इस चैप्टर में ये प्लाज्मोडेस्माटा तो जानते हो, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, हेलो बताओ। Plasmodesmata, minute opening which are present in between the 2 cells or adjacent cells. This is known as the plasmodesmata. जब एक कनेक्शन की बात है, सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे, जब डेट कनेक्शन, whenever the date materials whenever across one cell to another, this is known as the apoplastic pathway. Whenever living substances when passes from one cell to another, this is known as the symplastic pathway given in your NCERT book. Now, ascent of cell क्या होता है? What do you mean by ascent of cell? Ascent of cell. Ascent of cell, ये क्लास 10 में भी पढ़े आप लोग। हेलो, आप लोग इसको ascent of cell क्लास 10 में भी स्टार्टिंग किए हो। ascent of cell मींस क्या होता है? हेलो, ascent of cell क्या होता है? हेलो, upward movement, upward movement of mineral and water into the plant body is known as ascent of cell. Ascent of cell. Ascent of cell means upward movement. Water present in the soil. Plant having root and root hairs. Root hairs draw the capillary water from the soil and
circulate throughout the plant body up to 30 feet and 40 feet. The upward movement of the plant is known as the ascent of sap. Okay, ascent of sap. Acha. Kritika, hello. Kritika, hello. Hello. Kritika. Yes, sir. बताओ तो रूट प्रेशर क्या होता है? पढ़े हो क्लास 10 में रूट प्रेशर? रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर, इसमें बहुत सारा डेफिनेशन आता है. व्हाट डू मीन बाय रूट प्रेशर? रूट प्रेशर रूट प्रेशर the pressure Hello. exerted in the cortical part of the stem is known as root pressure. ये सब डेफिनेशन इस चैप्टर में है. रूट प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड इन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेम इज नोन एज रूट प्रेशर. इसी से क्या होता है ना, वाटर टुवर्ड्स द दैट मींस अपवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू रूट प्रेशर. सेल टू सेल ऑस्मोसिस कैसे होता है? व्हाट इज सेल टू सेल ऑस्मोसिस? हेलो हेलो प्रांजल, प्रांजल प्रांजल, हेलो, आवाज नहीं दे रहा है कोई. प्रांजल, Yes, sir. प्रांजल अब बताओ क्या मतलब क्या होता है? सेल टू सेल ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए एक डायग्राम बताते हैं. इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि सेल टू सेल ऑस्मोसिस कैसे होता है. जैसे मान लीजिए ये स्टेम का डायग्राम है. इसमें सेंट्रल पार्ट है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू एंड दीस आर सेल एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एटसेट्रा. बट हियर रूट हेयर प्रेजेंट. ये जो है एरिया है ये रूट हेयर. ये रूट हेयर में सॉइल है, चारों तरफ से सॉइल पार्टिकल है. दिस इज सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल. दिस इज रूट हेयर, रूट हेयर. ओके, ये रूट हेयर है. और ये हो गया आपका कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स. ओके, ये जो रूट हेयर से जो वाटर रिलीज होता है दैट मींस एंटर इनटू द कॉर्टिकल सेल. इस सेल में आता है. जब एक सेल में दूसरा सेल में जो आता है व्हेनेवर द वाटर फ्रॉम रूट हेयर एंटर इनटू द कॉर्टिकल सेल द सेल बिकम टर्जिड फुल्ली एक्सपेंडेड कंडीशन. और तब क्या करेगा, ये जब एनलार्जमेंट हो जाएगा वाटर आने का बाद वो क्या करेगा, द नेबरिंग सेल को प्रेशराइज करेगा. ठीक है, इट क्रिएट द प्रेशराइज ऑन द नेबरिंग सेल. तब क्या होगा, यहाँ का वाटर यहाँ से हो जाएगा, तब ये फिर एनलार्ज हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड सेल टू सेल ऑस्मोसिस. ओके, अल्टीमेटली द वाटर एंटर इनटू द जाइलम स्ट्रैंड और जाइलम कोर. एक सेल से दो सेल होगा, दूसरा सेल, तीसरा सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल एंड गोज ऑन. इसी में क्या होता है ना, अल्टीमेटली जाइलम में जाके पहुंचेगा और धीरे धीरे वो जाइलम स्ट्रैंड क्या होता है ना, इट दैट मींस ड्रॉ द वाटर फ्रॉम दैट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके,
अच्छा नेक्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये तो बताना है आप लोगों को। हेलो हेलो, जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? हेलो, जाइलम जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड। जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा सब कुछ इसमें फ्लोएम से होता है। तो जाइलम का जो मूवमेंट होता है ये यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? हेलो, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। और फ्लोएम का? हेलो, फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल। अच्छा, फ्लोएम लिविंग टिश्यूज होता है या डेड टिश्यूज? और जाइलम लिविंग होता है या डेड? आप सर क्लास जाइलम डेड टिश्यू होता है। हाँ 9th में पढ़े हो ना, जाइलम का डिफरेंट टाइप्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल्स, पढ़े हो ना? यस और सर। फ्लोएम, फ्लोएम में क्या है? सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ये सब टाइप्स है। लेकिन कौन डेड है कौन लिविंग है बताओ? जाइलम में डेड सेल पाया जाता है। जाइलम डेड है। हाँ, जाइलम में डेड सेल पाया जाता है, फ्लोएम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब चीज थोड़ा सा पढ़ लेना है, जाइलम फ्लोएम में क्या क्या ये है। अच्छा नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमाटा है ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा यस्टरडे लास्ट मोमेंट में डिस्कस किए थे। स्टोमाटा का जो डायग्राम है इसमें एक्चुअली एक डायग्राम में बताना ये कर रहा हूँ, स्टोमाटा डायग्राम, और उससे पता चलेगा माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए इस टाइप का मिलेगा स्टोमाटा। ठीक है, ये ओपनिंग स्टोमाटा है। ये हो गया आपका गार्ड सेल, गार्ड सेल, इसमें न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा, ये गार्ड सेल, गार्ड सेल। और ये एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। और ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमाटा, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमाटा, ये तो पता है आपको। इसमें गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मल सेल और सब्सिडियरी सेल। देन ये डायग्राम आप देखें, इसमें बुक में भी होगा या किसी इसमें भी हो सकता है, आप इसको देखोगे उसमें स्टोमाटा ओपन होता है, उसके बाद गार्ड सेल जब टोटली कम बैक टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देन स्टोमाटा क्लोजेस। ओके, तो इसमें मैकेनिज्म, दिन में स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। बट यू नो बायोलॉजी साइड्स ऑफ एक्सेप्शन, इसमें दिन में स्टोमाटा ओपन होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में स्टोमाटा रात में भी ओपन हो सकता है। दैट मींस स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कौन सा प्लांट का नाम बताए थे? हेलो हेलो, नेम द प्लांट, हो जाएगा। नेम द प्लांट where stomata open during the night time। क्या नाम बताए थे? हेलो, हाँ याद रखोगे, सेडम, SEDUM, सेडम है। और एक है आपका पाइन एप्पल,
pineapple. Okay, sedum and pineapple, etc. ठीक है, sedum and pineapple ये दोनों है, ठीक है. अच्छा, नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है ना, ग्लूकोज फॉस्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है गार्ड सेल में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉस्फेट इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल. ओके, तो गार्ड सेल में अगर इंक्रीजेस होता है तो नेचुरली ये जो गार्ड सेल का जो वॉल है, दो वॉल, एक इनर वॉल एक आउटर वॉल, ये इनर वॉल जो है ये स्ट्रेचेस इनवर्ड्स, इधर से स्ट्रेचिंग होगा, आउटर वॉल इधर से स्ट्रेचिंग होगा. दैट मींस जो है एबी जो गार्ड सेल है, एबी इस साइड में स्ट्रेचिंग होगा वॉल, और आरएफ जो है सर इसके कारण तो कैम्प साइकिल भी चल जाता है इसमें. इसमें ओपनिंग हो जाता है, लेकिन व्हेनेवर कैम्प साइकिल भी इसी के कारण चलता है. कैम्प साइकिल तो जो स्टोमाटा जिसका जो ओपन होता है नाइट टाइम, उसमें कैम्प साइकिल होता है, क्यों ना ये ऑल्टरनेट पाथवे, यस सर, क्यों ना उसमें रात में होता है, उसमें एक ऑल्टरनेट पाथवे होता है जिसको बोलते हैं क्रेजुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, उस पाथवे होता है. बट ड्यूरिंग द डे टाइम the concentration of the glucose phosphate increases in the guard cell. As a result of this, the outer wall stretches outwards and inner wall stretches innerwards. As a result of this, both the, that means guard cell, that means stretches inwards. As a result of this, opening of stomata takes place. During the night time, concentration of the glucose phosphate reduces. As a result of this, the wall of the guard cell come back to the original configuration and stomata closes. So this is mechanism, but इतना इजी नहीं है. उसमें कैल्शियम का रोल है, मैलिक एसिड का रोल क्या है, वो आपको डिटेल्स में थोड़ा स्टडी करना है, ठीक है. बट ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द टार्जिडिटी. टार्जिडिटी मींस, व्हाट डू यू मीन बाय टार्जिडिटी? टार्जिडिटी, टार्जिडिटी क्या होता है? व्हाट इज टार्जिडिटी? टार्जिडिटी, व्हाट इज टार्जिडिटी? Fully expanded condition of the cell is known as turgidity, or it is also called the imbibition. Okay, imbibition, IMBIBITION, imbibition or imbibition or turgidity. They are fully turgid condition, expanded condition. Whenever cell occurs, this is known as a turgid cell. Turgid, ज़्यादा turgid हो जाएगा तो chance, having the chance of बस्टिंग हो जाएगा. इसी कारण से क्या होगा ना, सेल रप्चरिंग हो जाएगा और सेल डैमेज हो सकता है. इस कारण से यस्टरडे आई डिस्कस किए थे, जो ट्रांसमिशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम सॉइल टू द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज यू नो द सेल टू सेल ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, एंड whenever one cell become turgid, if this water not able to transfer from one cell to neighboring cell, then that rupturing of the cell takes place. As a result of this, cell damage and cell death takes place. Ultimately, the death of the plant takes place. Okay, so this is turgidity. Turgidity means cell becomes fully turgid or fully expanded condition. This is known as turgidity. Okay. अच्छा, next. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, whenever the food is prepared by the process of photosynthesis in the leaf, the glucose type of the food is prepared. You know, a glucose is prepared and glucose will circulate throughout the plant body through the phloem. Okay, this phloem plays significant role for the transportation of the food, also water, each and every cell in the plant. As we know, the plant do not have some other system, particularly in human beings. As we know, skeletal system as well as circulatory system, respiratory system, etc.
digestive system. Plant not having such type of systems, only the conducting system is present, which consists of xylem and phloem. Okay, ये xylem and phloem ही होता है इसमें, और इसी कारण से xylem and phloem का थ्रू से पूरा प्लांट बॉडी में सर्कुलेशन होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट है, ऑस्मोसिस का एक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऑस्मोसिस. अच्छा, एक चीज है वाटर पोटेंशियल, एक इक्वेशन भी है, इसको आप याद रखना है. इक्वेशन मींस इक्वेशन क्या? हाँ होगा कैसे? ठीक. water potential. हेलो. Water potential is measured क्लास चल रहा है. बायो का करना. water potential is measured measured in terms of pressure, terms of pressure, 7 to 6. pressure 305. and common unit of 2. and Password. common unit for 1720. water potential. No. Please take it. Password. Potential 232. हाँ. water potential is Pascal. Is Pascal, and it is denoted by. It is denoted by Greek word psi. Greek word psi. So we can write here. एक इक्वेशन आपको याद रखना है, that is water potential of any solution can be represented psi W equal to psi S plus psi P. Psi W means water potential, psi S means solute potential, or psi P equal to pressure
पोटेंशियल, ये चीज आप लिख सकते हैं। ओके, इसको नोट करो। भेज दिए व्हाट्सएप पे। लिख लियो ना? हेलो, यस सर, हो गया। हाँ, इसको कुछ कुछ लिखते जाओ। इसके बाद ट्रांसपिरेशन पूल का जो डेफिनेशन है उसको इसको ट्रांसपिरेशन पूल के बारे में इसको लिखो, कंप्लीट करो।
transpiration will pull most of the water transporting plants. Most of the water transporting plants is due to a pull for which the driving force is transpiration in the leaves. This is called transpiration pull. Okay, जब ऊपर से continuous releasing of water from the aerial part of the plant, तो नीचे एक vacuum create होता है सेल में. उसी कारण से क्या होता है ना, plant draw the water from the soil, और उसी कारण से इसको बोलते हैं cell to cell osmosis, ascent of sap, root pressure, facilitate diffusion. All these physiological phenomena get together and ultimately draw the water from the soil to the upward direction in the plant. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप नहीं लेना है रामन सर. रिसोर्स सेंटर कंप्लीट. हेलो. यस सर हो गया. तो आज तो टाइम नहीं है और बाद में डिस्कस किया जाएगा. बेटर होगा ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो ऑफलाइन में ही आपको ज्यादा यू फील इजी एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लास. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.